بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب ایک خوبصورت اور پرسکون وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کا نام خوشحال بستی تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ، محنتی اور ایماندار تھے۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورتی، صاف دل لوگوں اور اصولوں کے لیے بہت مشہور تھا۔ گاؤں کے آس پاس صاف شفاف ندیاں بہتی تھیں جن میں سورج کی روشنی چمکتی اور پانی کو سنہرا بنا دیتی تھی۔ ہر طرف ہرے بھرے درخت تھے جن کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جسم و دل کو تازگی بخشتی تھی۔ یہ منظر دل کو سکون دیتا اور روح کو خوشی محسوس ہوتی تھی۔ خوشحال بستی کے لوگ فطرت سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہر درخت، ہر پتھر اور ہر ندی میں ایک خاص جان ہے اور ان کا احترام کرنا انسان کا فرض ہے۔ وہ مانتے تھے کہ یہی قدرتی توازن زندگی کا حسن ہے۔ گاؤں کے بچے بچپن سے اپنے بزرگوں کی کہانیاں سن کر بڑے ہوتے تھے۔ ان کہانیوں میں محنت، سچائی اور ایمانداری کو سب سے بڑی دولت بتایا جاتا تھا اور یہی خوبیاں ان کے دلوں میں بس چکی تھیں۔ اسی پرسکون بستی میں ایک نوجوان لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام دلاور تھا۔ دلاور کوئی بہت طاقتور شخصیت کا مالک نہیں تھا۔ اس کا جسم دبلا پتلا تھا اور قد بھی درمیانہ، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو بتاتی تھی کہ وہ اندر سے بہت مضبوط اور خود پر بھروسہ کرنے والا انسان ہے۔ اس کے دل میں پہاڑوں جیسا حوصلہ اور سورج جیسی روشنی بھری ہوئی تھی۔ وہ پرانی روایات کو بہت مانتا تھا اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا اصول بہت ہی آسان تھا۔ یہ اصول اسے اس کے بزرگوں سے ملا تھا اور وہی اصول گاؤں کی ہر بات، ہر دیوار اور ہر کہانی میں موجود تھا۔ جو کام کرو دل سے کرو، پورے خلوص اور ایمانداری سے کرو، اور جو رزق ملے وہ صرف حلال ہونا چاہیے۔ دلاور اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا تھا، چاہے وقت کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ یہ اصول اس کے ایمان کا حصہ بن چکے تھے۔ یہی اصول اس کی پہچان اور اس کی اندرونی طاقت تھے۔ دلاور ہر روز سب سے پہلے جاگتا جب آسمان پر ستارے ابھی بھی چمک رہے ہوتے اور ٹھنڈی ہوا پتوں میں ہلکی سی سرسراہٹ پیدا کرتی، وہ اپنی پرانی کلہاڑی کندھے پر رکھ کر جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا۔ اس کی کلہاڑی اگرچہ پرانی ہو چکی تھی مگر وہ اسے بدلتا نہیں تھا کیونکہ اسے اپنے اوزاروں پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ روزانہ ایک خاص چکنے پتھر پر اپنی کلہاڑی کو رگڑ کر تیز کرتا اور اسے صاف رکھتا۔ اس کا ماننا تھا کہ اپنے کام کے سامان کی حفاظت کرنا بھی محنت کا حصہ ہوتا ہے اور ہر چیز میں اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں قدم رکھتا، ایک خاص سا سکون، تازگی اور روح کی ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ پرندوں کی میٹھی آوازیں، درختوں سے آنے والی خوشبو اور ٹھنڈی صاف ہوا اس کے دن کا بابرکت آغاز بن جاتی تھی۔ دلاور کے لیے یہ کام صرف روزی کمانے کا ذریعہ نہیں تھا بلکہ وہ فطرت کے ساتھ کام کرتا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا اور درختوں سے اجازت لے کر لکڑیاں کاٹتا۔ وہ صرف وہی درخت کاٹتا تھا جو مکمل بڑے ہو چکے ہوتے، جو کسی بیماری سے کمزور ہو گئے ہوتے۔ وہ چاہتا تھا کہ جنگل کا حسن اور توازن خراب نہ ہو۔ دلاور اپنے کام میں بہت مہارت رکھتا، گہرے اور مشکل راستوں والے جنگل میں داخل ہوتا۔ کبھی راستہ صاف ہوتا اور کبھی خود جھاڑیاں ہٹا کر برف کو چیر کر راستہ بنانا پڑتا۔ وہ درختوں کو بہت دھیان سے دیکھتا، ان کی جڑیں، تنے اور شاخیں غور سے پرکھتا۔ وہ صرف وہی درخت چنتا تھا جو مکمل بڑے، صحت مند اور مضبوط ہوتے۔ وہ کبھی کمزور بیمار درخت کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ دلاور اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر غلط خراب لکڑی شہر بھیجی تو لوگ اس پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس کی برسوں کی محنت اور ایمانداری کا بھروسہ ختم ہو جائے گا۔ جب وہ کلہاڑی سے لکڑی کاٹتا تو اس کی ہر ضرب میں ایک خاص ترتیب ہوتی۔ وہ کبھی جلد بازی نہیں کرتا تھا بلکہ بہت صبر اور دھیان سے کام کرتا۔ لکڑی کاٹنے کے بعد وہ انہیں بڑے سلیقے سے صاف کرتا، فالتو شاخیں کاٹ دیتا، لکڑی کو مناسب لمبائی میں چیرتا تاکہ لے جانا اور استعمال کرنا آسان ہو۔ پھر ان لکڑیوں کو مضبوط رسی سے باندھ کر گٹھوں کی شکل دے دیتا۔ جب سورج ڈھلنے لگتا اور پہاڑوں پر ہلکی دھند چھا جاتی تو دلاور اپنی گدھے گاڑی پر لکڑی کے گٹھے رکھ کر شہر کی منڈی کی طرف روانہ ہو جاتا۔
दिलावर की काटी हुई लकड़ियों की हमेशा गैर मामूली मांग रहती थी क्योंकि वो मेयार में बेहतरीन होती। शहर के ताजिर और शहरी दिलावर की लकड़ियों को दूसरे तमाम लकड़हारों पर तरजीह देते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि दिलावर कभी नाकिस माल नहीं लाता और उसके काम में कभी मिलावट बेईमानी नहीं होती। इसकी इसी लाजवाल मेहनत, ईमानदारी और मेयार पर कभी समझौता न करने की आदत की वजह से दिलावर का घराना हमेशा खुशहाल रहा। इसके बच्चे कभी भूखे नहीं सोए और उसकी बीवी के चेहरे पर हमेशा इत्मीनान और शुक्रगुजारी की मुस्कुराहट रहती। दिलावर के लिए इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं थी कि इसके प्यारे मुतमईन जिंदगी गुजारी। एक साल मौसम ने अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर एक खौफनाक करवट ली। आसमान पर काले घने बादल छा गए जो कई हफ्तों तक न छटे और शदीद तरीन सर्दी ने पूरी वादी को अपनी लपेट में ले लिया। बर्फ इतनी कसरत से गिरने लगी कि देखते ही देखते पहाड़ों की बुलंद चोटियां बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर नीचे वादियों तक फैल गईं। नदियां भी जिम गईं, उनके बहाव रुक गए, दरख्तों पर बर्फ की मोटी तहें जिम गईं और सर्दी का राज हर तरफ फैल गया। गांव और शहर के दरमियान तमाम रास्ते जो पहले से ही कच्चे और मुश्किल थे मुकम्मल तौर पर मुनक़ते हो गए, कोई आ जा नहीं सकता था। सर्दी बढ़ने के साथ ही लकड़ी की मांग कई गुना बढ़ गई। मंडी में लकड़ी की कीमतें आसमान को छूने लगे, लेकिन जो लकड़ी मिल रही थी वो खराब मेयार की थी। दूसरे लकड़हारे इस शदीद बर्फबारी और डांसिस में जंगल के अंदरूनी हिस्सों तक जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे जहां असली और मजबूत दरख्त थे। कुछ ने तो बिल्कुल ही काम छोड़ दिया, अपने घरों में बैठ गए और अपनी किस्मत को बुरा भला कहने लगे। वो कहते थे, ये तो खुदा की तरफ से आफत है, हम कुछ नहीं कर सकते। और जो लकड़ी ला रहे थे वो सूखी खराब इतनी कमजोर थी कि सर्दी के लिए नाकाफी थी। लोग बहुत परेशान और मायूस थे। उन्हें अगले वक्त की फिक्र खाए जा रही थी और हर तरफ एक उदासी छा गई थी। गांव में सर्दी की वजह से कुछ बीमारियां भी फैलने लगें और हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे, गोया तकदीर ने उनका बहुत बड़ा इम्तिहान लेना चाहा हो और आसमान से उनके ईमान का इम्तिहान लिया जा रहा हो। लेकिन दिलावर अपनी आदत का पक्का, अपने उसूलों का सच्चा और अपने इरादों का मजबूत था। ये इसके अज़्म और किरदार का सबसे बड़ा इम्तिहान था जब उसके अपने साथियों ने भी हिम्मत हार दी थी और मायूसी के बादल हर तरफ छाए हुए थे। इसकी बीवी ने भी इसे समझाने की कोशिश की, दिलावर ये मौसम ठीक नहीं, बाहर मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। इसके छोटे बच्चों की आंखों में भी खौफ नजर आता था, लेकिन दिलावर जानता था कि अगर वो भी हार मान गया तो सब भूखे रहेंगे। इसे अपने ज़मीर की आवाज सुनाई देती थी जो इसे हौसला देती थी और इस पर भरोसा करने वालों की उम्मीद इसके दिल में कुव्वत भर देती थी। इसने आसमान की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और खुदा पर भरोसा किया। इसने दिल ही दिल में दुआ की कि वो इसे ताकत दे। हर सुबह जब दूसरे अपने गर्म कंबलों में दबकी होते और सर्दी की शिद्दत से कांप रहे होते, दिलावर अपनी कुल्हाड़ी और एक मजबूत रस्सी लेकर पैरों में पुराने मगर मजबूत चमड़े के जूते पहने, जो इसे बर्फ से कुछ हद तक बचाते थे, बर्फ से ढके हुए पहाड़ी रास्तों से गुजरकर घंटों की मशक्कत के बाद इस हिस्से में पहुंचता जहां पुराने और मजबूत दरख्त मौजूद थे। इसके लिए हर कदम उठाना एक बड़ा चैलेंज होता, बर्फ में फंस जाना आम बात थी। कभी कभी इसे घुटनों तक बर्फ में धंसना पड़ता, इसके हाथ और पांव सुन्न हो जाते और उसकी सांसें धुएं में बदल जाती। बर्फ की तहों को हटाना, सख्त जमे हुए तनों पर कुल्हाड़ी चिल्लाना जो पत्थरों की तरह सख्त हो चुके थे, और फिर किट्टी हुई लकड़ियों को संभाल कर लाना, ये सब एक जानगुसिल और बहुत थका देने वाला काम था। कई बार वो फिसल कर गिरता, कई बार बर्फ में दब जाता, इसके जिस्म पर जख्म आ जाते और इसे शदीद तकलीफ होती, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसके दिल में एक ही धन थी, काम, ईमानदारी और रिज़्क़ हलाल। वो अपने खानदान की जरूरियात को कभी नहीं भूला। इसने मिकदार में कम मगर बेहतरीन मेयार की लकड़ियां काटें और उन्हें सलीके से बांधा, जिस तरह वो हमेशा करता था। इसने कभी मेयार पर समझौता नहीं किया, चाहे इसके लिए कितनी ही सोबतें क्यों ना उठानी पड़ें।
जब वो अपनी लकड़ियों के गट्ठे लेकर शहर की मंडी में आया तो इसका ढेर इतना बड़ा नहीं था जितना के बाज दूसरे बेईमान लकड़हारों का था जो नाकिस और हल्की लकड़ियां जमा करके ले आए थे। उनके ढेर ऊंचे नजर आते थे लेकिन उनमें सिर्फ दिखावा था और कोई असली फायदा नहीं था। मगर दिलावर की हर लकड़ी ठोस, मजबूत और आला मेयार की थी। इसकी लकड़ियों में एक खास चमक थी और उनकी खुशबू दूसरे ढेरों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मंडी में शहर के बड़े बड़े ताजिर और अमीर लोग मौजूद थे जो अच्छी लकड़ी की तलाश में थे, लेकिन उन्हें मायूसी ही हाथ लग रही थी क्योंकि ज्यादातर लकड़ी खराब, बोसीदा और इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। लोग सर्दी से बहुत ठिठुर रहे थे और महंगी लकड़ी खरीदने पर भी उन्हें इत्मीनान नहीं मिल रहा था। उनकी उम्मीदें टूटती जा रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे शहर पर भी एक गहरी मायूसी का साया छा गया हो। शहर में एक बड़े ताजिर जो शहर के सबसे अमीर, समझदार और ईमानदार लोगों में से था। इसे शदीद सर्दी से बचने के लिए बहुत ज्यादा लकड़ी की जरूरत थी क्योंकि इसके गोदाम में मौसम सरमा के लिए लकड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इसके अपने घर में भी सर्दी बढ़ रही थी और उसके मुलाजिमीन बहुत परेशान थे। वो मंडी में परेशानी के आलम में लकड़ी तलाश कर रहा था, अपनी जरूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, जब आखिरकार उसकी निगाह दिलावर के छोटे मगर मजबूत लकड़ियों के ढेर पर पड़ी। इसे एक लम्हे को यकीन नहीं आया कि इस मौसम में, जब हर तरफ नाउमीदी छाई थी, ऐसी अच्छी लकड़ी भी मिल सकती है। इसने तजस्सुस से एक लकड़ी उठाकर उसकी मजबूती और किस्म को परखा, अपनी जेब से एक छोटी सी कुल्हाड़ी निकालकर हल्की सी ज़र्ब लगाई और फौरन पहचान लिया कि ये आला मेयार की लकड़ी है। इसने लकड़ी की खुशबू सूंघी और उसकी ताजगी को महसूस किया। ताजिर ने इससे पहले ऐसी मियारी लकड़ी इस मौसम में और ऐसी मुश्किल सूरत-ए-हाल में मंडी में नहीं देखी थी। वो दिलावर की मेहनत, इसकी गैर मुतज़लज़ल ईमानदारी और उसके काम में इसकी लगन से इस कदर मुतासिर हुआ कि इसने फौरन फैसला कर लिया कि इसे बस यही लकड़ी चाहिए। ताजिर ने दिलावर को करीब बुलाया। दिलावर ने अदब से सर झुकाया। इसके चेहरे पर थकावट और बर्फ की वजह से कुछ सुर्खी थी, लेकिन आंखों में इत्मीनान और एक खास चमक थी। ताजिर ने दिलावर को इसकी लकड़ियों की आम कीमत से तिगनी कीमत अदा की और मजीद इनाम के तौर पर कुछ सोने के सिक्के भी दिए जो दिलावर की तवक्को से कहीं ज्यादा थे। ये इस बात का सिला था कि दिलावर ने इतनी मशक्कत उठाकर भी मेयार पर समझौता नहीं किया। इसके साथ ही ताजिर ने दिलावर को मजीद लकड़ियां काटने का ऑर्डर भी दे दिया और ये ऑर्डर इतना बड़ा था कि दिलावर कई महीनों तक आराम से और बहुत अच्छी रोजी कमा सकता था। ये सिर्फ एक कारोबारी मुआहदा नहीं था, बल्कि एक मजबूत रिश्ते का आगाज था जो एतमाद, ईमानदारी और बाहमी एहतराम पर मबनी था। ताजिर ने दिलावर की हिम्मत और सच्चाई को सराहते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और इतनी मुश्किलात में भी अच्छा काम करना वाकई तारीफ के काबिल है। इस मुश्किल वक्त में भी तुमने अपने उसूलों को नहीं छोड़ा। आज से मैं सिर्फ तुमसे ही लकड़ी खरीदूंगा और किसी दूसरे लकड़हारे से नहीं लूंगा। मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है जिनका अखलाक और काम एक जैसा हो और जिन पर मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकूं। तुम्हारी ईमानदारी ने न सिर्फ मुझे मुतासिर किया है, बल्कि मुझे यकीन दिलाया है कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अच्छे उसूलों पर जीते हैं। ताजिर ने दिलावर का हाथ थामा और एक अजीब सा इत्मीनान महसूस किया। दिलावर का दिल खुशी और खुदा के शुक्र से भर गया। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक आ गई थी जो इत्मीनान और कामयाबी की चमक थी। इसकी मेहनत, जिसे बाज लोग शायद गधों जैसी मेहनत कहते, और उसकी दयानतदारी जिसकी वजह से इसे बज़ाहिर कम लकड़ियां मलती थीं, आज रंग ले आई थी। इसे गहरा एहसास हुआ कि सच्ची लगन और ईमानदारी से की गई मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती और सब्र का फल हमेशा बहुत मीठा होता है, चाहे इसके लिए कितनी ही मुश्किलें क्यों ना उठानी पड़ें। इस दिन से दिलावर का काम और भी चमक उठा। इसका नाम हर ज़बान पर था और वो ईमानदार और मेहनती लकड़हारों की एक जिंदा मिसाल बन गया। गांव में भी इसका बहुत एहतराम किया जाने लगा और उसकी कहानी हर जगह सुनाई जाने लगी। बच्चे और बड़े सब इससे सबक सीखते। इसकी कहानी न सिर्फ इसकी अपनी नस्लों बल्कि आने वाली कई नस्लों के लिए एक रोशनी बन गई,
जो उन्हें ये सिखाती कि कामयाबी सिर्फ पैसा कमाना नहीं होती, बल्कि किरदार, अच्छे उसूलों और दयानतदारी की जीत होती है। दिलावर ने साबित किया कि एक सच्चा और मेहनती इंसान दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मुश्किल में अपनी जगह बना सकता है और अपनी मेहनत और पुख्ता इरादे पर अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। इसने जिंदगी का एक ऐसा सबक दिया जो सदियों तक कायम रहा और हर दौर में रहनुमा साबित हुआ। इसका नाम तारीख में मेहनत और ईमानदारी की सबसे बड़ी अलामत बनकर हमेशा जिंदा रहा और उसकी मिसालें दी जाने लगें। ये लाजवाल कहानी हमें ये गहरा और हमेशा रहने वाला सबक सिखाती है कि मेहनत, दयानतदारी और सब्र वो बुनियादी बुनियादें हैं जिन पर इंसान की सच्ची कामयाबी और इज्जत व वक़ार की इमारत खड़ी होती है। दुनिया की मुश्किलात, थोड़ी देर के लालच और आर्जी आसानियों के बावजूद अपने उसूलों और मेयार पर कायम रहना आखिरकार आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है और आपको एक ऐसा मकाम अता करता है जो सिर्फ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, बल्कि अच्छे किरदार और इज्जत की बुनियाद पर हासिल होता है। सच्चे दिल से की गई कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं और आपकी ईमानदारी ही आपका सबसे बड़ा सरमाया साबित होती है जो आपको हर मुश्किल में कामयाब करती है। ये कहानी ये भी बताती है कि ईमानदारी न सिर्फ आपके अपने लिए बल्कि पूरे मुआशरे और आने वाली नस्लों के लिए भी अच्छाई और रहनुमाई का बाइस है। ये एक याद दहानी है कि मुश्किल वक्त में भी अपने अंदर की रोशनी, अपने उसूलों पर यकीन और अपने मजबूत इरादे को कभी कमजोर ना होने दें, क्योंकि यही चीजें आपको कामयाबी और हमेशा की इज्जत की तरफ ले जाएंगी। दोस्तों, इन छोटी छोटी कहानियों में जिंदगी के बड़े बड़े सबक होते हैं जो हमें बेहतर इंसान बनने का रास्ता दिखाते हैं। उम्मीद है कि आपने इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो अभी हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारी बहुत हौसला अफजाई करता है। शुक्रिया।